चाहिए अभी समाज में जो ये ऐसा अच्छा काम करे और लोगों को ऐसी मदद करे। आपको मालूम है मेरे को भाषण देता कहने नहीं आता है, सॉरी, सीधी बात नो बकवास। तो बस ये हिंदुस्तानी भाव का पूरा सपोर्ट इनके साथ है, कभी भी और कहीं भी। थैंक यू। Actually, just like I said in my speech, everybody is just worried about corona, but cancer and TB, they are the worst diseases, and we are going through this for many years, and till now we don't have the confirmed medication for cancer, and many deaths are happening around the world, and I have a foundation other than my party. We also work only for the cancer women. And when Rubina ji came to me and she told me about her initiative, I was very happy to join hands, and my full support is there with her. On a very lighter note, as you said, कि कैंसर तो कोरोना तो हम सबको पता है, इतना पूरे विश्व में हो रहा है, लेकिन अगर हम नंबर देखेंगे टीबी के और कैंसर के नंबर देखेंगे, जिस एक साल में जितनी डेथ होती है लाखों में है, और कोरोना की अगर हम बात करेंगे पिछले 1.5-2 साल में जब से कोरोना है, 1.5 लाख या 2 लाख का नंबर आए होंगे ना मौत के लिए। क्या do you agree with this? It is more sensitive, the disease cancer and tuberculosis is more sensitive than corona? Actually, all diseases are worst if they are not treated properly. See, corona mein, like in India, at least the rate of death is very less, like very less than not even 1%. But we all are worried because it was new, we didn't know anything. But now, as we came to know that there are medication, the doctors are treating, and hardly there is a death rate. But I still feel that the cancer death rate and the TB death rate is way ahead of corona, and we should take care of all the diseases. But the cancer is very डरावना जिसको बोलते हैं, इट इज़ दैट टाइप ऑफ डिजीज। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ, कोरोना की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से कोरोना को लेके बातचीत हो रही है, एक पैनिक का माहौल है, अगर हम टीबी की बात करें या कैंसर की बात करें, अगर उसको आप नेशनल चैनल पे बैठ के उस बारे में बात करेंगे, रोज़ बताएंगे कि आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोगों की डेथ हो गई, एक पैनिक का माहौल बनेगा, लेकिन नहीं हो रहा है वैसा। मतलब हम एक्चुअली द इंडियंस आर नॉट वरीड। If you see the way we are, everybody is roaming out, and एक साल घर बैठ के many people have lost their jobs. The students can't go to the school, colleges to attend. They can't meet friends, and after that we understood that it is not so scary. Like the cancer is scary, corona is not so scary. So yes, it is a new disease. So like last full year, the whole world was like on toppled, like the economy and everything. But we should take care with all the diseases. रिजवी फाउंडेशन की आपने आज वो एम्बुलेंस अनवेल करी है, कितना फ़ायदा होगा गरीबों को? बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ एम्बुलेंस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है पैसों के अभाव में, और भी बहुत सी चीज़ें। इट इज़ वेरी ट्रू, like that's why I came here to show my appreciation that lot many people are like as I am working in the field, the people don't have money to even do the testing. जो प्रायर टेस्टिंग होता है कैंसर के लिए, वो उसके लिए भी पैसा नहीं होता, उनके पास एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं होता। सो आई फील इट इज़ आई रियली अप्रिशिएट देयर वर्क। Ma'am, the thing is, we're talking about the awareness of cancer actually. Because you may have come across so many people who are in the very large stage and they don't come through. Uske liye, how are you trying to really work on that? See, that's what we are doing. That's what I was saying, that the testing part is only so expensive that people don't feel like going out and testing. उनको ऐसा लगता है क्यों आग में जाके अपना पाव रखो। So we try and we give the we call the doctors, we explain to the women, and we push them for the testing. Unfortunately, every time we get to 1 or 2 women, they are infected, they are cancer positive, we give them the treatment also. So they don't want to come across that डर जो होता है ना कि अच्छा I am infected. So they try to avoid. लगता है कि हमें बहुत सारे हॉस्पिटल में या उनको एनकरेज करना चाहिए, इस तरह की जो टेस्ट आपने जैसे कहा था कि एक्सपेंसिव, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड ये टेस्ट यहाँ तक कम से कम। एक्चुअली द सोशल एक्टिविस्ट, मतलब जो डोनर्स है जैसे रिजवी सर, वी शुड हैव मोर पीपल हु कैन हेल्प देम। एवरीबडी वांट्स टू डू इट, बट उनके पास पैसा नहीं होता, वो भी होता है। सो द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फंड, लाइक टाटा है, टाटा कैंसर, ऐसे और इंस्टीट्यूट बनने चाहिए where the poor can get the better treatment and the test. रीता मैम, आप इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि रुबीना जी और डॉक्टर अख्तर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे शर्मिला मैम ने आपसे कहा कि कैंसर अवेयरनेस पर हम काम करते हैं, और हमें पता है कि कैंसर जब एक घर में आ जाता है तो उस घर का परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है।
तो उस पर हम जैसे काम करते हैं वैसे इनका काम भी हमने सुना, हम इनको बहुत शुभकामनाएं इन्हें देते हैं और कभी भी इनको हमारी ज़रूरत लगे या हमें इनकी ज़रूरत लगे तो हम एक दूसरे के साथ हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you. Journey started, Sharmila Thakre was here to support the initiative. This is something absolutely in this pandemic time, a social cause is happening. Tell us how this whole journey started. Sir, Akhtar sir, if we can throw some light on this. Keep quiet. Journey started means in what context you are asking? The current, today's event I'm talking about. Today's event you're talking about. Today's event of cultural virtual marathon is in continuity of the two past marathon which were physical, where more than 8 to 10,000 people were physically present early morning around 4:30, 5 o'clock to make actually the marathon success. And the marathon actually, the intention of this marathon is remembrance and to make people realize actually that this is for a cause. This is not part of any sport. That is another event of a sport. It's not an event of a sport, but it is a social event for remembrance of, in memory of the cancer patients, and to make people realize actually that they must come forward and do their bit and best to help actually cause of cancer patients. So this was in continuity of those 2 years, so that actually this goes on, and the years to come actually the same marathon for the same memory continues. Sharmila ji herself has been working for a lot of cancer patients. For a lot of cancer patients, जैसे आपने सुना कि उन्होंने खुद कहा कि वो काफ़ी मदद करती हैं महिलाओं की जो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो हम तो पूरी तरह से जब से हमने ये हेल्थ केयर सेल फाउंडेशन किया है, शुरू किया है, तो हम पूरी तरह से ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो NGO चलाते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स की मदद करते हैं। तो जब हमने उनके बारे में भी खोज की और पता लगाया और ये जाना कि वो बहुत कुछ करती हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो हम दोनों गए थे उनको इनवाइट करने के लिए, एंड विद अ वेरी हम्बल एंड काइंड जेस्चर शी अग्रीड एंड शी एज यू सॉ दैट शी विजिटेड and she became a part of this NGO and the program of cancer awareness, Saqib Rizvi Memorial Cancer Awareness Program. So ऐसे शर्मिला जी आई, बाकी भी जैसे मैंने आप यहाँ पर थे तो सारी चीज़ों को हमने पेंडेमिक की नज़रिए से देखकर सारी चीज़ों को हमने सुरक्षित रखा था। यहाँ पर कंप्लीट सैनिटाइजिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया था। उस प्रोटोकॉल को दिमाग में रखते हुए हमने जब हायर डिग्निटरीज़ को अप्रोच किया, वो लोग भी आए और उन्होंने भी कोऑपरेट किया, क्योंकि देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ना करे कि हम में से किसी को भी हो। जब भी हम जैसे आम इंसान जो नहीं जूझते इस बीमारी को, जब भी हम सुनते हैं कि उन्हें ये चीज़ हो गई है तो अपने आप के अंदर ही वो सिंपैथी पैदा हो जाती है, और जब भी हम उसके प्रति किसी को अप्रोच करते हैं तो वहाँ से मना कभी नहीं हो। मैम, रिजवी ग्रुप हमेशा एक इनिशिएटिव लेता है, चाहे वो यंगस्टर्स हो, यूथ हो, चाहे पब्लिक हो, तो हाउ डू यू फील लाइक व्हाट इज़ द सपोर्ट, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक यू गेट आफ्टर टेकिंग ऑल दिस इनिशिएटिव फॉर पब्लिक? 100%, आई वुड नॉट से 60%, 70%, बट इट्स 100% सपोर्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑफकोर्स रिजवी इज़ अ बिग ग्रुप, it has its own branding, it has its own brand name, तो रिजवी अपने आप में ही एक बड़ा नाम है, तो लोग तो अक्सर हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, मगर ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है उससे लोग सिर्फ जुड़ते ही नहीं हैं, बल्कि हमारे इस सोच को, इस कोशिश की बहुत सराहना करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैम, what things are there which keep you both of motivated and like keep on going and keep on doing social work for people? What is the thing which keeps you motivated? It's a common cause actually of health, that when we have established educational institute nearly 35 years back, having so many colleges and schools, so that motive was actually
to help people, because it is built with our own money without collecting any donations. That means the cause and the help of the people and the charity is at our heart, and that keeping in mind, it is in the continuity of the same educational aspect that we want also to come in the health field, the medical benefit and the relief actually in the medical field. And this cancer memorial cause which we have started is the most important requirement, need of a day. That is why we have taken up this cause, and this cause actually we are getting tremendous support from the people. That encourages us that we are doing the right thing, because it is not for any commercial or any publicity, but it's a silent work that is going on inside, and we get appreciation more from those who are affected. It's not only the marathon, you see. Every year we take an initiative of giving free service to the cancer patients. Every year, like we help especially women for going on for screening. We do their counseling, and we give free screenings to the women, and then we try to help them. फिर there are a lot of इस बार तो हमने हैम्पर्स दिए हैं. वो हैम्पर सिर्फ चॉकलेट्स और बिस्किट के नहीं थे. अगर आप मेरे मैनेजर से वो लिस्टिंग ले लें तो आप देखेंगे कि उस हैम्पर में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने भी पहली बार देखा. जैसे उनके बेडशीट्स, उनके पर्टिकुलर आजकल वो ऑक्सीजन पंप आया है उनके लिए. तो जब हम ये सारी चीज़ों की खोज कर रहे थे तो हम उस हैम्पर को बहुत अच्छा और बेहतर बनाने की हमने कोशिश की है. और सिर्फ 4 या 10 लोगों को बुलाकर ही हमें वो हैम्पर नहीं देना है. अब हम पूरा साल उस हैम्पर्स को कैंसर पीड़ित लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. Ma'am, how can a needy person, poor people, can come in contact for this free ambulance service? Is there any helpline number what you have given out? Yes, we have provided a complete helpline number. रिजवी कॉलेज में के अंदर ये एम्बुलेंस खड़ी रहेगी. पूरी हेल्पलाइन नंबर सुविधाओं के साथ. आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड फॉर्म है, आप हमारे हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के वेबसाइट पर जा सकते हैं, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. रीच अस फ्रॉम दी वेबसाइट ऑफ हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन, जहाँ पर हमारे हेल्पलाइन नंबर्स है, हमारे कुछ लोगों के नंबर्स हैं. आप उन्हें कॉल कीजिए. अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं या लाइन बिज़ी हो रही है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं. दैट इज़ एन इमीडिएट फॉर्म जो हमारी वेबसाइट में है. अर्जेंट लिखा हुआ है उस पर, वो आप फिल कर लीजिए. इमीडिएट वो फॉर्म व्हाट्सएप हो जाएगा उस कंसर्न पर्सन को. हमने इस चीज़ को बहुत इजी एक्सेस रखा है, यूज़र फ्रेंडली सिस्टम रखा है, क्योंकि सिर्फ एम्बुलेंस को ख़रीदना, उसे यहाँ तक लाना या उसको इनॉग्रेट करना ये ज़रूरी नहीं था. हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो और ज़रूरतमंदों के वो काम आए. स्पेशली कैंसर ही नहीं, बस इस पेंडेमिक में भी वो काम आए, क्योंकि ये फुली इक्विप्ड है with complete all equipments, oxygen, AC, it's a semi ICU. So वो कितना भी सीरियस इंसान हो, वो दवाखाने हॉस्पिटल पहुंचने तक वो सुरक्षित रहे और थोड़ी हेल्प उस एम्बुलेंस से उसको मिलती रहे. आगे किस तरह से मुंबई कर्ज के लिए और आगे सेवा उपलब्ध करी जाएगी? आगे किस तरह का रिजवी ग्रुप एक इनिशिएटिव लेके आने वाला है? आगे किस तरह का रिजवी ग्रुप द्वारा एक नया इनिशिएटिव और कौन सा लेके आने वाले हो आप लोग आगे? The constitution actually Rizvi Education Society is a registered charitable trust, and every trust has got its own constitution, and in that constitution health service था. अख्तर रिजवी साहब ने और रुबीना मैडम ने जो प्रोग्राम रखा था कैंसर पेशेंट के लिए, वो एक बहुत ही उत्साहजनक प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने एम्बुलेंस की ओपनिंग किया और इतने सब बड़े लोगों को बुलाया. तो उसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ों का जो जैसा प्रोग्राम है
ऐसा वो हर साल रखे और कैंसर पेशेंट की मदद करते रहे। शर्मिला मैडम भी आई थी, क्या कहना चाहिए आज एम्बुलेंस जो लॉन्च हुआ है इसके बारे में? जी, अख्तर रिजवी साहब और शर्मिला मैडम को खुद जाकर उनके घर पे इनविटेशन दिया था, इसलिए वो आई थी। काफ़ी देर तक उन्होंने बैठा, उन्होंने एम्बुलेंस की ओपनिंग किया और उनका मेन आने का मकसद ये था कि वो खुद कैंसर पेशेंट के लिए बहुत काम करती हैं और कैंसर पेशेंट के साथ बहुत जुड़ी हुई है। तो उनके आने से एक प्रोग्राम में एक चांद लग गया, जैसे बोलते हैं ना, तारे लग गए। और उन्होंने ये बोलकर गया है कि आगे भी रुबीना रिजवी मैडम के साथ में वो जुड़कर काम करेंगी। कैंसर पेशेंट के लिए जहाँ भी ज़रूरत होगी वो हमेशा हाजिर रहेंगी। अभी आपकी पार्टी की तरफ से, एमएनएस की तरफ से बात करें, क्या क्या चल रहा है अभी कोरोना के चक्कर में जो चीज़ें हैं? हर कोने में अगर आप देखेंगे तो हमारे लोग घरों में जाकर, एरियाओं में जाकर मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सर्वेंट को पीपीटी किट जो बांटा गया वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से बांटा गया था, माननीय राज साहब ठाकरे के आदेश पर। और अभी भी हम लोगों का फ्री टेस्टिंग करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ हॉस्पिटलों में उनको बिल से लेके प्रॉब्लम है या उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता उतर के उनके लिए मदद कर रहे हैं। एक्चुअल सिचुएशन क्या है आजकल? बात करें कोरोना की, जो भी चल रहा है, दूसरा माहौल आया है, दूसरा टर्म आया है इसका, कोरोना की दूसरी लहर जो आई है उसके बारे में देखने जाओ, जो हम भी जो देख रहे हैं और हम जो लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, ये एक बहुत ही ख़तरनाक महामारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मास्क का उपयोग, सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। जितना कम हो सके उतना बाहर निकले, जितना हो सके पब्लिक प्रोग्राम, पब्लिक मीटिंग्स को अवॉइड करें और जितना हो सके अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये महामारी का कोई इलाज नहीं है अभी तक। जो वैक्सीन आई है वो भी अभी तक पॉजिटिव साबित नहीं हुई है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि अपना पूरी तरह से ध्यान रखिए और इस चीज़ से बच के रहिए। एमएनएस हमेशा गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, वो मतलब काफ़ी अच्छी आवाज़ रहती है, एमएनएस बोलती है। तो वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन का जो आ रहा है इसके बारे में कितनी धांधली चल रही है, या आ रही है, नहीं आ रही, क्या सीन है? सर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वैक्सीन को लेकर अभी तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट बाहर आया नहीं है और अभी वैक्सीन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको दिया जा रहा है। वैक्सीन आने के बाद में भी महामारी का जो इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक मैं ये कहूँगा कि हमको अभी तक वैक्सीन पे कोई भरोसा आया नहीं है। आने वाले वक्त में देखेंगे कि लोगों के ऊपर जो ट्रायल हो रहा है वो इस महामारी से अगर बच जाए तो हम उसको पॉजिटिव करेंगे और हम उसको पूरी सहायता करेंगे और सबको मैसेज देंगे कि जाके वो वैक्सीन लें। डर है कि लॉकडाउन दोबारा हो सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? जिस हिसाब से जो केसेस बढ़ रहे हैं, और मेरे काफ़ी 2-3 मेरे दोस्त हैं जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, जब उनसे बात हुई थी तो उनके हिसाब से यस लॉकडाउन आने वाला है, ऐसा वो बोलते हैं। और मेरे was a part of this very great initiative done by Mrs. Rubina Rizvi, and again for the cancer patients, I'm very happy that I got a chance to be a part of this very great cause. What initiative? What motivates you to be a part of such initiative, and what will be your idea of expressing love or spreading love? Well, when I won this title called Miss Universal Peace and Humanity, so I became already I am a Goodwill Ambassador for Human Rights Commission from India. So I always work towards humanity and peace, you know. So I feel good from inside whenever I get a chance to help others. So yeah, I always feel great, you know. Don't you think a sense of responsibility goes up once you become a Goodwill Ambassador? Of course, yes. You know, we always say that big responsibilities, big titles or big name comes with a big responsibilities, you know. It's always like this. So yes, when I won my title, at that time I realized, yes, I'm no more Sufi Sayyad, I'm no more a doctor, but also I have this big responsibility where whenever I get a chance to work towards peace and humanity, I will definitely say yes, and that's why I always try to be here every year whenever Mrs. Rubina Rizvi, she calls me, so I always say yes and I cancel all my other things and I feel so grateful. Tell us about your association with Rubina, your bond with Rubina. Well, I always call her my superpower because I feel happy whenever I see especially ladies, you know, women, when they are very powerful, they are confident and they are doing really great work. So I always say, being a Goodwill Ambassador, I got an award for women empowerment as well. So yes, I feel happy that she's doing a great work being a woman,
And yes, we already born equal, so there's no more equality fight anymore. So I always feel good to be a woman and to see people like Mrs. Rubina Rizvi. So yes, Allah bless her always, and I'm so happy. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.